बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum student. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent and merciful. This is class 8 and the period is the English literature. Welcome to all students and the parents. This is the academic week number 11 and the video number 1. In this video, I will explain you or I will tell you the format of the paper of the revision of the second semester final term. Let's start. First question is Section A. Question number 1. MCQs. Marks 30. MCQs include in section A. Also marks is 30. Question number 2. A. Words meaning. Question number 2B. Dictation. Marks 10. Question number 2. Each question have 5 marks. Word meaning and the dictation. Yes. Question number 3. Also include in the section B. Section B. Section B here 2A, 2B, 3A, 3B, 3A. Answer the following questions. Six chapters include in this section. B. Also question answers include. Yes, question number 4 also include in the section B. 4A and 4B. In 4A and 4B, development exercises. Development exercises. Development exercises. Have also a 10 question, 3A or a 3B. Each question have 5 marks. Section C.
Question number 5 A and question number 5 B. All question have a 7.5 marks. 7.5. In question number 5A, summary and 5B, introduction of the writer and the poet. Introduction of the writer and the poet. Question number 6A and question number 6B also have a 7.5 marks. 7.5 marks each question. Question number 6A, poetry section. Stanza explanation. And question number B, comprehension text. Comprehension test. This is the format of your paper. Section A have a 30 marks, MCQs, 30 MCQs, and question number 2, question 2A and the 2B have a 10 marks. Each question have a 5 marks. First question is in your paper words meaning, and the second is the dictations. Question number 3, answer the following question answers of the 6 stories that is given your second semester final content. Question number 3B, question answer also have a 5 marks. Next, question number 4A and the 4B, development exercises of the chapter number 10 and the 16. Section C have a 15 marks. Each question have a 7.5 marks. Question number 5A, given a summary and the second introduction of the writer and the poet. Question number 6A, this is the poetry sections, stanza explanations, or 6B, comprehension text. This is the format of your paper. The first chapter name is chapter number 1. The old sea dog. Chapter number 2. Perilous quest. Perilous quest. Chapter number 'The Story of Oil'. Chapter number 5, The Story of Oil. Chapter number 8, The Fortune Teller. Chapter number 10, The Virtuous One. Virtuous One. Chapter number 16, Rough Justice.
योर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ फाइनल टर्म। ये तमाम चैप्टर्स आपके सेकेंड सेमेस्टर ऑफ फाइनल कंटेंट के अंदर इंक्लूड हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 द ओल्ड सी डॉग, चैप्टर नंबर 2 द फेरलेस फेस्ट एंड द चैप्टर नंबर 5 द स्टोरी ऑफ द ओल, chapter number 8 the fortune teller, chapter number 10 the virtuous one, and the chapter number 16 rough justice. Let's start. Today we will discuss or again discuss chapter number 1 the old sea dog. This story has taken place the novel Treasure Island written by the Robert Louis Stevenson, and the storyteller is the Jim Hawkins. Let's start the reading. I take up my pen and go back to the time when my father kept the Admiral Bamboo Inn, and the brown old seaman with the saber cut first took up his lodging under our roof. देखिए इस पैराग्राफ में जो हमारे पास स्टोरी टेलर है वो कौन है? जिम हॉकिन। वो जिम हॉकिन जो नहीं वो फ्लैशबैक कर रहे हैं अपनी मेमोरीज को, और यहाँ पे बता रहे हैं किस तरीके से जो एक ब्राउन ओल्ड सीमैन इंटर हुआ था उनके इन में। सेकेंड पैराग्राफ, आई रिमेम्बर हिम, और स्टोरी टेलर जिम हॉकिन वो याद करते हुए कह रहे हैं आई रिमेम्बर हिम एज इफ इट वॉज द yesterday as he came plodding to our inner door, his sea chest following behind him in the hand barrow, a tall, strong, heavy, nut brown man, his starry pigtail filling over the shoulder of his swelled blue coat, his hands ragged and scarps, black brown nails, and the saber cut across the cheek, dirty livid white. अब इस पैराग्राफ में जिम हॉकिन रिमेम्बर होते हुए कह रहे हैं कि किस तरीके से वो नट ब्राउन मैन किस तरीके से इन हुआ था उनके होटल एडमिरल बैम्बो में, और उसके साथ जो था वो क्या था? हैंड बैरो। और वो किस तरीके से उसकी अपीयरेंस बताई गई है कि वो हैवी नट ब्राउन मैन था, और इसके अलावा हैव अ टेरी पिगटेल, यानी कि हेयर्स टुगेदर एट द बैक, और ऑल्सो हैव अ शोल्डर इन हिज शोल्डर ऑफ हिज स्वेल्ड ब्लू कोट, और वो जो पोनीट थी उसके जो स्वेल्ड डर्टी कोट पर उसके बाल बिखरे हुए थे, और उसके हैंड्स रब्ड एंड स्कार्ड निशान ज्यादा थे, और इसके अलावा उसके फेस पर भी एक सैबर कट अक्रॉस द चीक, उसके फेस पर इस तरीके का एक मार्क भी हुआ बताई। थर्ड पैराग्राफ, आई रिमेम्बर हिम looking around the cove and whistling to himself as he did so, and then breaking out in the old sea song that he sung so often afterwards. और जिम हॉकिन यहाँ पर बताते हैं कि किस तरीके से वो वहां पर घूम रहा था और विसिल कर रहा था एक सॉन्ग, 15 men on the dead man chest. This is so important song. 15 men on the dead man chest. Yo ho ho and the bottle of the rum. Drink and the devil had done for the rest. Yo ho ho ho, a bottle of the rum. You have to memorize this song. Also, I said to you, you have to memorize this song. 15 men on the dead man chest. Yo ho ho ho, a bottle of rum. Drink and the devil and done for the rest. Yo ho ho, a bottle of the rum. Next paragraph, he rapped the door with the bit of stick, and when my father appeared, called roughly for the glass of rum. This, when it was brought to him, he drank slowly and kept looking about him, the cliff up at the signboard. अब इस पैराग्राफ में वो कह रहा है ही रैक में बजाना, नॉक करना, वो बिट ऑफ दी स्टिक, यानी कि वो बिट ऑफ दी स्टिक से वो जो नहीं नॉक कर रहा था, और उसी वक्त मेरे फादर एडमिरल बैम्बो इनके अंदर जब वो आया तो वो उन्हें बहुत ही रफली क्या करता है, रम ऑफ द ग्लास का पूछता है, एंड kept looking about him and the cliff up and the signboards, और उसको साथ ही क्लिफ्स को देख रहा था और साइन बोर्ड्स को वो वहां पर तकते हुए पाया गया। This is the handy cove, says at the length, and the pleasant grog shop much company met. Jim Hawkins said, यहाँ पर कह रहे हैं कि वो मेरे फादर से कह रहा है कि यहाँ पे जो कंपनी है बहुत अच्छी कंपनी है, मच कंपनी मेट,
तो वो कह रहे हैं ग्रॉक शॉप यहाँ पे बार रूम को कहा जा रहा है। My father told him no, very little company, the more was the pity। यानी कि जो ओल्ड सीमेंट डॉग है उस कंपनी को वो क्या कर रहा है, लाइक कर रहा है, लेकिन जिम हॉकिन के फादर उसे डिसलाइक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी कंपनी नहीं है। और ये कंपनी किसको कहा जा रहा है, वहां की गैदरिंग को, जो कि उस होटल उस इनके अंदर जो लोग मौजूद हैं और कैप्टन को और सीमैन को ये बात अच्छी लग रही है कि वहां पर जो नहीं कंपनी ज्यादा नहीं है, वहां पर गैदरिंग ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ, Walden said, "This is the berth for me here, you matey." He carried to the man who trundled the barrow. "Bring up alongside and help up my chest. I will stay here at a bit." He continued, "I am a plain man. Rum and the bacon and eggs is what I want, and that headed there for to wash it off. You may call me a captain." यहाँ पर जो नहीं है वो किससे कह रहे हैं, जेम्स फादर को वही कह रहे हैं। यू मे कॉल मी अ कैप्टन, ओ आई सी यू आर एट देयर एंड थ्रू डाउन 3 or 4 gold coins, pieces of the threshold. Threshold mean the end of the door. You can tell me when I have worked through that, says he, looking as fast as a commander. इस पैराग्राफ में यहाँ पर जिम्स कह रहे हैं कि वो मेरे फादर को जो नहीं है एडवांस जो 3 और 4 जो गोल्ड कॉइन्स हैं वो फेंकते हुए देता है और बहुत ही गुस्से में वो कहता है कि कॉल मी अ कैप्टन, कि आप मुझे कैप्टन बुलाएं। नेक्स्ट पैराग्राफ, एंड इंडीड बैड एज दिस क्लॉथ वर एंड द क्रॉसली एज ही स्पोक, he had none of the appearance of a man who had sailed before the mast, but seems like a mat or the skipper. देखिए वो यहाँ पे जिम हॉकिन बता रहे हैं कि वो अपने अपीयरेंस से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे कि वो अपने आप को कह रहा था कि कॉल मी अ कैप्टन, बल्कि जो नहीं वो अपनी उसकी अपीयरेंस भी बहुत ही रफ थी और वो जो नहीं वहां पे कैप्टन तो नहीं बल्कि उसको स्कीपर यानी कि उसका असिस्टेंट कह सकते हैं कि वो लग रहा था। ही द मैन हु केम विद द बैरो told us the mail and sat him down the morning before the Royal George. The second name mentioned in this paragraph, Royal George, also the inn. First inn name was the Admiral Benbow and the second inn name was the Royal George, mentioned in this paragraph that he had inquired what inns there were along the coast, and hearing ours well spoken of, I suppose, and described as lonely, had chosen it from the others, as is this praise of the residents. And that was all we could learn of our guest. देखिए यहाँ इस पैराग्राफ में जो जिम हॉकिन है वो ये बता रहे हैं कि वो जो कंपनी को पसंद नहीं कर रहा था, मेरे फादर को ये कि लिटिल कंपनी पसंद नहीं आती और एज कम्पेयर टू कैप्टन जो नहीं है वो उसे ये कंपनी लिटिल कंपनी को पसंद करता है। वो कह रहा है कि इस इन को रॉयल जॉर्ज यानी कि एक जो सेकंड इन है हमारे पास वो था रॉयल जॉर्ज, उसकी जगह पे उन्होंने किसको पसंद किया था, एडमिरल बेम्बो को, कि वहां पर जो कंपनी है वो लिटिल कंपनी को वो लाइक कर रहा है। तो कह रहा है इसी वजह से मैंने इस इनको चूज किया। इस पैराग्राफ में यहाँ पर ये बताया जा रहा है। सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ, he was a very silent man or by the custom. All the day he hung around the cove or upon the cliffs with the brass telescope. All evening he sat in the corner of the parlor next to the fire with the drink. Mostly he would not speak when spoken to, only look up sudden and the fires and blow through his nose like the fog horns. And we the people who came about the house soon learned to let him. Every day when he came back from his stroll, he would ask if any seafaring man had gone by along the road. अब इस पैराग्राफ में जिम हॉकिन बता रहे हैं कि वो जो नहीं है बहुत ही यानी कि साइलेंट पर्सन था और वो ऑल डे हंग अराउंड दी कोव, उस कोव यानी कोव वो जगह जहाँ पर परचेज और सोल्ड की जाती है वाइन, वहां पर वो पाया जाता था। और इसके अलावा क्लिफ में और उसके पास हमेशा एक ब्रास टेलीस्कोप मौजूद थी और वो पूरी शाम कहाँ पे उसने स्पेंड की थी, इन अ कॉर्नर ऑफ द पार्लर नेक्स्ट टू द फायर। और इसके अलावा यहाँ पे ये भी इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एंड द पीपल हु केम अबाउट द हाउस सून लर्न टू लेट हिम बी एवरी डे व्हेन ही
came back from his stroll, और जब वो शाम में घूम फिर कर वापस आ जाता था तो वो हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछता था, और वो क्वेश्चन वो ये था, he would ask if any seafaring man, यानी कि कोई seafaring man had gone by along the road, कौन कोई seafaring man है जो कि सी के रास्ते से जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, at first we thought it was the want of company of his own kind that made him ask this question, यानी कि जब भी वो ये क्वेश्चन पूछता था कि कोई सी फेयरिंग मैन है तो उसका ये था कि वो अपनी जैसी कंपनी चाहता था, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। देखिए, एट फर्स्ट वी थॉट, के शुरू में हम यही समझते थे, ही was the want of company of his own kind of the, जैसे कि वो खुद है इसी तरीके की वो कंपनी चाहता था, जिसमें वो साइलेंट मैन था, वो ज्यादा कंपनी को पसंद नहीं करता था, वो ऐसी ही कंपनी चाहता था। This questions, but at least we begin to see he was desirous to avoid them, और जब उसे अपने जैसे कोई पर्सन मिल जाते थे, अपनी जैसी कंपनी मिल जाती थी, फिर उसे वो क्या करता था, अवॉइड करता था। When a seaman put up at the Admiral Bimbo, he would look at him through the curtains door before he entered the parlor, and was always sure to be as silent as the mouse when any such was present. For me, at least, there was the secret about the matter, for I was in a way, यहाँ पर जो यहाँ पर I was in a way, यहाँ पे जिम हॉकिन जो है स्टोरी टेलर वो बता रहे हैं कि ये यहाँ पर अगर वो कर्टन्स के पीछे से जब वो सीमैन पार्लर में इन होता है तो उसे वो देख रहा होता है, लेकिन मेरे लिए ये कोई भी जो नहीं कोई सीक्रेट नहीं था। For I was in a way a sharer in his alarm. He had taken me aside one day. अब यहाँ पे जिम हॉकिन कह रहे हैं कि जो सीमैन है, ओल्ड ब्राउन सीमैन, वो उसे एक दिन जो नहीं साइड पर ले जाते हैं, एंड प्रॉमिस मी अ सिल्वर 4 pennies ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ, आई वुड ओनली कीप माई weathered eye फॉर द सी फेयरिंग मैन विद द 1 leg। अब वो जो नहीं उसे ऑफर करता है कि मैं आपको जो नहीं है एंड ऑफ द मंथ जो नहीं है 3 और 4 कुछ गोल्ड कॉइन्स दूंगा, बस आपको काम क्या है कि आपको सी फेयरिंग मैन पर बहुत ही शार्प आई, यानी कि बहुत ही नजर रखनी है जिसकी 1 leg हो, and let him know the moment he appeared, और जिस मोमेंट वो appeared होगा, जैसे ही वो सी फेयरिंग मैन यहाँ पर आएगा, आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। often enough when the first of the month came around and I applied to him for my wage mean payment, और वो कह रहे हैं कि जैसे ही मंथ का एंड होता है और मैंने उससे अपनी पेमेंट के बारे में पूछा, he would only blow through his nose at me and stare me down, but before the week was out he was sure to think better of it, but bring my 4 penny pieces and repeat his order। लेकिन जब वो मुझे पहले तो उससे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो आप मुझे दे देता है जो उसने प्रॉमिस किया होता है, लेकिन इसके साथ ही वो क्या करता है, he repeat his order, वो अपने ऑर्डर को रिपीट करता है, to look out for the seafaring man with the 1 leg, यानी कि अपनी शार्प आई रखनी है सीफेयरिंग मैन में, और मुझे इन्फॉर्म करना है जैसे ही वो इनके अंदर इंटर होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ दैट पर्सनेज हंटेड माई ड्रीम। अब यहाँ पे पर्सनेज किसके लिए यूज हो रहा है, कैप्टन के लिए, सी मैन को। तो यहाँ पे वो जो जिम कह रहा है वो मेरे जो ड्रीम्स हैं उनको कैसे वो खत्म कर सकता है, मेरे ड्रीम्स को वो कैसे फिनिश कर सकता है। आई नीडेड स्केयर्सली मीन ऑलमोस्ट, आई नीडेड स्केयर्सली टेल यू, वो कह रहे शायद ही मैं ये बात तुम्हें बताता, यानी कि वो कैप्टन से ही कह रहा है जिम हॉकिन। One stormy night when the wind shook the 4 corners of the house, अभी वो अपना ड्रीम किसे बता रहा है, कैप्टन को बता रहा है। And the surf roared along the cove and up the cliff, ये सारी जो सिनेरियो है वो उसका किसका सिनेरियो, उसके ड्रीम का, कि किस तरीके से जो है वो इतनी तेज, यानी कि विंड रॉर कर रही थी, इतनी तेज साउंड था कि उसे ऐसे लग रहा था कि पूरे जो कॉर्नर्स हैं हाउस के वो हिल रहे हैं। And I would see him as in a 1,000 forms, अब कह रहे उसे मैंने 1,000 form 1,000 शेप में 1,000 शक्लों में देखा। to see him leap and the run, कभी जंप करते हुए कभी रन करते हुए, यानी कि वो जिम के पीछे कभी रन कर रहा है कभी जंप कर रहा है, उस भाग रहा है। and pursue me over the hedge and the ditch was the worst of the nightmare, वो कह रहे हैं ये मेरे लिए किसी नाइटमेयर, किसी डरावने ख्वाब से कम ना था, ये जो उसने ये ड्रीम देखा था। and all together, इस सब के बावजूद I paid pretty dear for my monthly 4 penny pieces in the shape of these fancies,
लेकिन पर इन सबके बावजूद जो मेरे लिए फैंसीज थी, इसके अंदर जो एक अट्रैक्शन थी वो क्या थी, वो पेनीज थे गोल्ड कॉइन से, जो कि वो मुझे देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। But though I was so terrified by the idea of the seafaring man with the one leg, I was far less afraid of the captain himself than nobody else who knew him. यहाँ पे जिम हॉकिन बता रहे हैं कि मैं कैप्टन से इतना फियर, मैं इतना स्केर्ड कैप्टन से नहीं हूँ जितना मैं सी फायरिंग मैन से हूँ, जिसे वो जानता है। यानी वो कैप्टन से स्केर्ड नहीं है, बल्कि किससे स्केर्ड है, सी फायरिंग मैन से। There were nights when he took a deal more rum and the water than his head could carry. यानी कि उसने इतना ड्रिंक कर लिया होता है कि उसका जो सर है वो हिल रहा है। And then he would sometimes sit and sing his wicked old wild sea song. यानी कि वो बैठता है, जब वो बैठा हुआ होता है तो वो क्या करता है, sit and sing कर रहा है। And the wicked old पुराने wild songs को वो जो नहीं सिंग कर रहा है, minding nobody, but sometimes he would force all the trembling companies to listen his stories. और उसके साथ वो जो कंपनी उसके साथ मौजूद थी, वो जो लोग वहां पे मौजूद थे, वो उन्हें फोर्स कर रहा है लिसन टू माई स्टोरीज, कि आप मेरी स्टोरीज को सुने। और वो तमाम जो कंपनी थी वो कहती थी, जैसे कि वो शिवर कर रहा था, ट्रम्बल कर रहा था, कंपनीज भी ऐसे ही, जो उसके साथ जो लोग थे वो भी वैसे ही शिवर और ट्रम्बल कर रहे थे। बेयर टू हिज सिंगिंग। Next and the last paragraph. Often I have heard the houses shaking with the yo ho ho. अब देखिए यहाँ पे जिम हॉकिन कह रहे हैं कि मुझे ऐसे लग रहा था वो जो पूरा हाउस है वो उसी के साथ जो सिंग करते हुए यो हो सिंग कर रहा है। And a bottle of the rum, यहाँ पे वाइन को, यानी कि इसके हाथ में जो bottle of the rum है, all the neighbors ज्वाइनिंग इन दी फॉर देयर लाइफ, और तमाम जो नेबर्स हैं जो उसके साथ जो कंपनी थी वो उसे ज्वाइन कर लेती है। विद द फियर ऑफ द डेथ अपॉन एंड ईच सिंकिंग लाउडर देन द अदर्स, और एक दूसरे से बढ़कर, यानी कि एक तो सिंग कर रहा है लाउड, दूसरा उससे भी तेज सिंग कर रहा है। तो ये कह रहा है एक से बढ़कर दूसरा जो है ज्यादा लाउड वॉइस में सिंग कर रहा था। एंड ईच सिंगिंग लाउडर देन द अदर्स टू अवॉइड रिमार्क्स। People were frightened at the time, but on looking back, they rather like it. It was the fine excitement in the quiet country life. यानी कि ये जो पूरी एक तरीके पूरा वहाँ पर जो क्वाइटनेस थी उसको ये जो कंपनी है वो ब्रेक कर रही है। एंड देयर वाज इवन अ पार्टी ऑफ द यंगर्स। अब ये जो इसमें इस पार्टी के अंदर जो यंगर्स थे हु प्रिटेंड टू एडमायर एंड, वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो जो सीमैन है, वो जो ओल्ड सीमैन कैप्टन है, उसे वो एडमायर कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। एंड कॉलिंग हिम अ ट्रू सी ओल्ड डॉग, या उसे वो कह रहे हैं, यानी कि वो जो जंगल जो कंपनी है उसे क्या कॉल कर रही है, द ओल्ड सी डॉग्स मीन द एक्सपीरियंस सेलर। एक्सपीरियंस सेलर, ये यंग कंपनी उसे जो है कॉल कर रही है, एड्रेस करती है सी डॉग एंड द रियल ओल्ड सॉल्ट, और इसके साथ साथ रियल ओल्ड सॉल्ट के नाम से भी उसे बुलाया जाता है जी, रियल ओल्ड सॉल्ट। And such like names and saying there was the sort of the man that made England terrible at sea. इन नेम से उसे एड्रेस किया जाता है, कॉल किया जाता है ओल्ड सी डॉग को। वो जो वहां पर जो ये पार्टी के अंदर जितने भी यंग मैन हैं उसे ये 3 नेम्स देते हैं। क्या नेम देते हैं? फर्स्ट को देते हैं ओल्ड सी डॉग एंड द सेकंड इज द रियल ओल्ड सी डॉग एंड द थर्ड वन इज द इंग्लैंड टेरेबल एट द सी। और दिस स्टोरी इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द नॉवेल ट्रेजर आइलैंड एंड रिटन बाय द रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। अब हम जरा इसकी कुछ इसकी समरी में एक दफा आपको बता देती हूँ अगेन। एंड ओल्ड पायरेट्स कम टू स्टे, यानी ओल्ड पायरेट। अब ये ओल्ड पायरेट कौन है? ओल्ड सी डॉग यानी कि कैप्टन को कहा जा रहा है। एंड ओल्ड पायरेट्स कम टू स्टे एट द एडमिरल बैम्बो इन, वो एडमिरल बैम्बो में आता है स्टे करने के लिए, विच इज रन बाय द नरेटर सेलिंग्स फादर। और उसके ऑनर यानी कि यहाँ पर जो से रन कर रहे होते हैं, किसे रन कर रहे हैं? इनको, होटल को जो रन कर रहे हैं वो कौन है? जेम्स फादर।
The pirate refers to himself as a captain and pays to the narrator a silver 4 penny every month to look out for the seafaring man. यानी कि वो एडवांस जो नहीं है वहां पर स्टे करने के लिए जेम्स फादर्स को वो 3 और 4 गोल्ड कॉइन्स देते हैं, और इसके अलावा वो जिम हॉकिन को क्या कहते हैं, जिम हॉकिन को यहाँ पर जो पायरेट है हमारे ओल्ड सी डॉग है वो क्या कहता है कि यू हैव टू लुक आउट फॉर दी सी फेरिंग मैन स्पेशली विद इन 1 लेग, जिसकी 1 लेग हो, द रेस्ट ऑफ दी स्टे। अब जितने भी वहां पे जो टाइम स्पेंड करता है ही स्पेंड द टाइम बाय ड्रिंकिंग एंड ऑल्टरनेटली टेरराइजिंग द गेस्ट, यानी कि वो जो इतना सिंग कर रहा होता है लाउडली और उन्हें फोर्स कर रहा था वो उसकी स्टोरीज उसकी सुने, तो वो जो इनके अंदर जो लोग मौजूद हैं वो उन्हें टेरराइज कर रहा है। और एट द एंड विद द ग्रूसम टेल्स, ग्रूसम टेल्स मीन द हॉरर स्टोरीज उन्हें सुनाकर, एंड बिस्टोरियस सिंगिंग मीन्स नॉइसली, यानी कि इतनी तेज वो सिंग कर रहा होता है तो वो उन्हें फोर्स कर रहा है कि आप मेरे साथ सिंग भी करो और मेरी स्टोरीज को भी सुनो। इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है, जो आपको मैंने पहले भी कहा कि यू हैव टू मेमोराइज द सॉन्ग, आपने सॉन्ग लाजमी मेमोराइज करना है जो मेंशन है हमारे पास इस स्टोरी के अंदर। और जो वो अगेन में एक दफा रिपीट कर देती हूँ, 15 मैन ऑन द मैन डेड चेस्ट, yo ho ho and a bottle of rum, drink and the devil had done for the rest, yo ho ho and bottle of the rum। ये आपको सॉन्ग भी लाजमी आप लोगों ने इसे मेमोराइज करना है। उसके बाद देखिए इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने जो कैरेक्टर स्केच था वो भी क्या था, और वो आपने कैरेक्टर स्केच करना है। और कैरेक्टर स्केच किसका, हमारे पास कैप्टन का यानी कि ओल्ड सीमैन का। और ओल्ड सीमैन की अपीयरेंस कैसी थी, फर्स्ट तो देखिए कि वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग था, नट ब्राउन मैन था, और इसके अलावा पोनीट टेल थी और नट ब्राउन मैन, और सैबर कट अक्रॉस हिज चीक, और उसके चीक पर एक सैबर कट जो नहीं है वो निशान था, और इस रफ एंड दी स्कार्स हैंड, उसके हाथ भी निशान ज़्यादा थे। यानी कि ये स्केच जो है वो हमारे पास कैप्टन द ओल्ड सी मैन का है। और कैरेक्टर राइटिंग, अगर कैरेक्टर राइटिंग देखी जाए तो वो भी आपने यानी हमारे पास मेन कैरेक्टर ही किसका है, सी मैन का। और वो सी फायरिंग मैन नहीं बल्कि ओल्ड सी डॉग को मैं यहाँ पे कह रही हूँ पायरेट जो हमारे पास था। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करते हैं। और सिर्फ चैप्टर नंबर 1 में जो एक चीज है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर, यानी कि ट्रेजर आइलैंड के राइटर कौन है, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन, और वो भी आपने मेमोराइज करना है। नाउ आई विल गिव यू दी असेसमेंट नंबर 1 ऑफ द चैप्टर नंबर 1। Assessment number 1, you will solve out by the help of the book and the given solution. First question number 1 is fill in the blanks. One, the old sailor staying at the dash. Blank number 2, the sailor who hires James tell him to look out for a dash. Blank number 3, the old sailor throws down a dash
father was the dash of the end. Dash of the end. 6. All the day, captain dash around the cove. Dash around the cove. Blank number 7. Dashwood mostly remain quiet. Question number 2. This is your first assessment. You will solve it by the help of your book and the content solution. Question number 2. Write the meanings. Write the meanings. Scarcely. First one is the SCERCERY. Scarcely. Second one, mat. Third one, crop shop. GROG. Crop shop. Fourth one is pigtail. Pigtail. Fifth one is tent. Sixth one is rumble. 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 Seventh one is spiral. SPIRAL. Eighth is Gallic. GAELIC. Gallic. Ninth is tactic. Tactic. And the last one is the study. Next question is question number 3. Write the song that is mentioned in the story. Write the song that is mentioned in the story. The Old Sea Dog. The Old Sea Dog. Next question is write the answers of the following questions. I will just give the head question answers. Questions answers. Question number 1. What other? Yes. What other in is mentioned? What other in यानी कि जो नेक्स्ट इनका वो कौन सा मेंशन है स्टोरी में? स्टोरी ना वो इतना लास्ट में नजर नहीं आया. मेंशन इन द स्टोरी. Second question is how did he pass the time during the day? पूरा दिन वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करता था कैप्टन ड्यूरिंग द डे? थर्ड क्वेश्चन इज गिव द
Write the character sketch ऑफ कैप्टन। कैप्टन का कैरेक्टर स्केच करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट द समरी ऑफ द चैप्टर द ओल्ड सी डॉग। राइट द समरी of chapter number 1, the old sea dog, and the last question is question number 6. Write the introduction of the writer. Robert Louis Stevenson. Write the introduction of the writer. Introduction of the writer. Writer is Robert Louis Stevenson. This is your home task, assessment number 1. You can help out in your from your book or the given content solutions. Time is over. We will meet you in the next video class. Till take care. Allah Hafiz.